چیف کی تعیناتی پر مشاورت ابھی شروع نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نہیں. ملکی سالمیت اور وقار سے کھیلنا جرم ہے. عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگایا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول کا الوداعی دورہ. یادگار شہداء پر حاضری. جنرل قمر جاوید باجوہ کی تربیت کی فراہمی اور مستقبل کے لیڈرز کی تیاری میں ادارے کے کردار کی تعریف. آرمی چیف کا بلوچ ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد کا بھی دورہ. افسران اور جوانوں سے ملاقات. بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا کراچی میں آغاز. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افتتاح کیا. دنیا کے 64 ممالک اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک. تجارتی اور ملٹری وفود کی بھی بڑی تعداد میں شرکت. مقامی طور پر تیار کردہ الخالد ٹینک، JF-17 تھنڈر، ڈرونز اور جدید ساز و سامان بھی نمائش میں پیش. ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کے خواہش مند نہیں. خطے اور دنیا کی ترقی پائیدار امن سے جڑی ہوئی ہے. امن اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. آئیڈیاز 2022 عالمی دفاعی مارکیٹ میں اہم پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر گئی. نمائش کا موضوع امن کے لیے ہتھیار، امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی خواہش کا مظہر ہے. ہمارا دفاعی شعبہ ٹیکنالوجی کے جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف کورونا وائرس میں مبتلا. 2 روز سے طبیعت ناساز تھی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور سابق صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. سپریم کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت. عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری. الیکشن کمیشن کے حکم امتناع کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. بھارت میں مسلم دشمنی شدت اختیار کر گئی. کرناٹک میں مسجد سے مشابہت رکھنے والا بس سٹاپ گرا دیا گیا. مسلم دشمنی میں حکمران جماعت BJP کے رہنما بابرے ہو گئے. بھارتی میڈیا بھی ہندو غلبے کی مالا جپنے لگا. مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کا قابض حکومت کی من گھڑت خبریں چلانے سے انکار. کئی صحافی انگریزی اخبارات سے مستعفی. کشمیری صحافیوں کو ہندوتوا ایجنڈے، BJP اور RSS کے مشترکہ بیانیے کو آگے بڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان انڈونیشیا میں ملاقات. اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. نیٹو کی توسیع، یوکرین سے اناج کی ترسیل اور ترکیہ کو F-16 طیاروں کی فراہمی کے معاملات پر گفتگو. بالی میں دنیا کے 20 بڑے صنعتی ملکوں کا سربراہ اجلاس. روس یوکرین جنگ کے عالمی اثرات پر غور. روس یوکرین جنگ ختم نہ ہوئی تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. دنیا کو کسی دوسری سرد جنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کا خطاب. ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. کالام میں درجہ حرارت -6، بابوسر -4 اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان. رواں سال سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ. قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز میں 5 دن باقی. ٹیمز کی دوحہ آمد کا سلسلہ جاری. 51 ملکوں کے دورے کے بعد ورلڈ کپ ٹرافی کی قطر میں رونمائی. فیفا ورلڈ کپ دوحہ میں 17 فٹ لمبا اور 7 فٹ اونچا دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال بوٹ نصب.
स्टेडियम में हिद्दत को कंट्रोल करने का भी मुनफरिद निजाम मुतारिफ। जदीद कूलिंग निजाम सोलर प्लांट से चलेगा। पाकिस्तान और आयरलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम्स के दरमियान फैसला कुन टी20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरे मैच को पिंक रिबन से मंसूब किया गया है। और शिगर में बल्तिस्तान की कदीम कश्ती रानी जख रैली का इनेकाद। चमड़े और ट्यूब से बनी कश्तियों पर मलाहों ने दरियाए सिंध में 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। रैली का मकसद सरमाई सियाहत को फरोग देना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर। From the house of Eagle Star and Rahbar. खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नाम नहीं। इस अहम तैनाती पर मुशावरत अभी शुरू नहीं हुई। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। कोई नाम नहीं, तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। नाम का तो डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्की सालमियत और वकार से खेलना जुर्म है। इस शख्स ने जाती मफाद के लिए कौमी मफाद को दांव पर लगाया। मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है उनको ख़राब करना अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती जो की ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी हैं। बर्री फौज के सरबराह ने आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक PMA काकूल आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने PMA काकूल में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सबूतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। फौजी अफसरों और कैडेट से गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि PMA काकूल पाक फौज की अवलीन तरबियती दरसगाह है जिसका इंतहाई आला मेयार काबिल सत्ताइश है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तैयारी में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल का अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने PMA काकूल में ज़ेर तरबियत कैडेट्स को नसीहत करते हुए कहा कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पेशा वाराना मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने में सर्फ करें। बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद आमद पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोच रेजिमेंटल सेंटर में जवानों रिटायर्ड अफसरों से गुफ्तगू करते हुए दिफाए वतन के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। चार रोजा बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 कराची में शुरू हो गई है। 57 मुल्कों से मंदूबीन और वफूद इस नुमाइश में शरीक हैं। जदीद तरीन असलहा, दिफाई आलात और डिफेंस टेक्नोलॉजी की नुमाइश जारी है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरामन मुल्क है और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशां हैं। उनका मजीद कहना है कि हम हथियारों की दौड़ में शामिल होने के ख्वाहिशमंद नहीं। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल तरक्की के लिए अहम है। हमारे खित्ते और दुनिया की तरक्की पायदार अमन से ही जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब इक़्तिदार मिला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की अनथक मेहनत और लगन से मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बनी। In today's globalized world, national security has emerged as a dynamic concept, as much economic, political, social and institutional as it is military and strategic in nature. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किए बगैर इस खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन ने कहा कि 57 ममालिक से 500 गैर मुल्की मंदूब और वफूद नुमाइश में शरीक हो रहे हैं, जो इस नुमाइश की कामयाबी है। इस मौके पर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार के दिफाई साजो सामान तैयार किए जा रहे हैं। बाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 11वीं इंटरनेशनल आइडियाज नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर खारजा ने नुमाइश का दौरा किया और वहाँ रखी गई दिफाई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान को बैन अवी सतह पर मुतारिफ कराने में आइडियाज नुमाइश कलीदी किरदार अदा कर रही है। आइडियाज नुमाइश के हर एडिशन में गैर मुल्की मंदूबीन और वफूद की शिरकत में इजाफा पाकिस्तान की दिफाई सनत की मकबूलियत का मुज़र है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आलमी दिफाई मंडी में एक अहम प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर गई है और खुशी है कि हमारा दिफाई शोबा मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि नुमाइश का मौजू अमन के लिए हथियार पाकिस्तान का अमन और सलामती की ख्वाहिश का मसर है। दिफाई नुमाइश के मौके पर मुसल्लह अफवाज के जवानों की जानिब से राइफल ड्रिल की तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आइडियाज नुमाइश में गैर मुल्की मंदूबीन और वफूद भी शरीक हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। Turkey and Pakistan, of course, to come together and to share about their defense productions as far as also know-hows. And I found this exhibition quite useful for its contribution to the defense sectors of countries. टर्की ने बहुत ज़्यादा इधर अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। चाइनीज़ इधर देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स इधर आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बुक कराए हुए हैं स्टॉल्स। इवन यूरोपियन बाकी भी फर्म्स हैं एंड पाकिस्तानी फर्म्स भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार होने वाले हमजहत जंगी हथियारों और फिजाई जंग के लिए तैयार करदा तैयारे भी नुमाइश की जीनत बने हुए हैं। दिफाई नुमाइश के बाकायदा इफ्तिताह के बाद पाक बहरिया के जवानों ने कमाल महारत से राइफल ड्रिल से अपनी पेशा वराना सलाहियतों का खूबसूरत अंदाज में मुजाहरा किया। अमन के लिए हथियार के उन्वान से 4 रोजा ये नुमाइश टेक्नोलॉजी के तबादले और फरोग में अहम साबित होगी और आलमी बरादरी और उनकी दिफाई सनत को हमारी दिफाई मसनूआत को जानने का मौका फराहम करेगी। दिफाई नुमाइश आलमी सतह पर अमन, दोस्ती और इस्तेहकाम की अलामत बन चुकी है और इससे पूरी दुनिया में एक पैगाम भी जाता है कि पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कवानीन का सही मानों में मुनसिफाना इत्तलाक न होने से मुआशरती तफरीक बढ़ती है। पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत को हर हाल में कानून के दुरुस्त इत्तलाक को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में नेशनल कमांड अथॉरिटी के सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए कही। सदर मुमलिकत ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तेजी से इजादात हो रही हैं। मुस्तकबिल में साइबर सिक्योरिटी को सरहदों और कौमी मफादात के दिफा में मरकजी हैसियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि कौमी डाटा के तहफ़्फ़ुज़, खिदमात की बिलातातुल फराहमी और अहम कौमी बुनियादी ढांचे की हिफाजत अहम ज़रूरत होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि मसनूई ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग में क़यादत फराहम करने के लिए आला सतह बॉडी कायम की जा सकती है ताकि मुतल्लिका इदारों और महकमों को आगे बढ़ने के लिए वाज़ेह समत फराहम की जा सके। एक सवाल पर सदर मुमलिकत ने कहा कि इलाकाई ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लचकदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामले में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के आगाज पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की इस्तदा करते हुए इस हवाले से मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों का हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, जिसके बाद डॉक्टर के मशवरे से वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोरोना टेस्ट करवाया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अवाम और कारकुनान से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उनके लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान एहतियात करें, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सेहतमंद और तालीमी याफ्ता कौम ही तरक्की कर सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ज़ियाबतस के आलमी दिन के मौके पर ईवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। हमें ज़ियाबतस समेत दीगर अमराज के बारे में अवाम को शऊर देना है। There are many ways of discouraging. लोगों को कन्विंस करना वो खुद छोड़ दें, सबसे बड़ी बात तो वही है। नॉर्म एक्सरसाइज का बनना चाहिए, रूटीन्स बनने चाहिए। अगर लीडरशिप करे तो ये उससे भी फर्क पड़ता है कि लोग उसको लाइफस्टाइल के तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं। ये मुल्क ट्रीटमेंट वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें तालीम दी जाती है ज़्यादा इलाज करने की। 10, 15, 20 साल गुजार लेते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार इतने लोग हैं, इनका इलाज तो हो नहीं सकता, लिहाजा प्रिवेंशन की तरफ राग़िब किया जाए लोगों को। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और सर्बिया के दरमियान तालीम, IT और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में सर्बिया के लिए नामजद सफ़ीर अली हैदर अल्ताफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी और तजारती रवाबित में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएं। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लामाबाद में सर्बिया का मिशन खुलने से रवाबित में आसानी होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामजद सफ़ीर पर जोर दिया कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1948 के मादनियात एक्ट को 1973 के आइन में विफाकी और सूबाई कवानीन की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया था। मादनियात एक्ट की कुछ शिकें विफाक और कुछ सूबों के इख्तियार में दे दी गई थीं। बलूचिस्तान असेंबली ने हालिया तरामीम के अलावा मादनियात एक्ट में कोई तब्दीली नहीं की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बैक वक्त एक कानून विफाक और सूबों के इख्तियार में हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिर्फ इन्हीं कवानीन को गलबा होगा जो विफाक और सूबाई सतह पर मुमासलत रखते हों। जस्टिस शाहिया आफरीदी ने कहा कि मादनियात एक्ट में तरामीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर होने की सूरत में अदालत मुदाखलत करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी वजह से रेकोडिक मुआहदा पाया तकमील को नहीं पहुँचता तो पाकिस्तान को इसका मुआशी नुकसान होगा।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सियासत, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत है। जमहूरी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में वज़ीर ख़ारजा के खिताब की तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम सब की तरजीह अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली होना चाहिए, ख्वाह हमारा ताल्लुक किसी भी जमात के अदारे से हो, जबकि नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाएं और इस सिलसिले में सूबाई सिंध में NICH, खैरपुर में गम्बट अस्पताल, जबकि कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जिगर की बीमारी मुल्क में मौत की सबसे बड़ी वजह है, जबकि जिगर पेवनकारी मरीज की जिंदगी बचाने का वाहिद इलाज है और हमें खुशी है गम्बट अस्पताल के बाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। तकरीब में इदारे की जानिब से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जिगर की पेवनकारी पर ब्रीफिंग दी गई। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में कैंसर यूनिट का संग बुनियाद रखा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दामात में ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़रूरी दस्तावेज़ात, आदाद व शुमार और नक्शाजात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा गया कि दोबारा हल्का बंदियाँ करके कौमी ख़जाने से वसाइल खर्च किया गए। अब तीसरी मरतबा फिर नई हल्का बंदियाँ की जानी है। सूबाई हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया था कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन रूल्स, हल्का बंदी रूल्स, यूनियन काउंसिल्स की तादाद और दीगर डाटा और नक्शाजात इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे ताकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का काम शुरू किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान की जानिब से कमीशन को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम शफाफ और गैर जानिबदार बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद चाहते हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुश्किलात का सामना है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि हम चाहते हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन हमारे मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब को वफाकी वज़ीर बनाए जाने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में तहरीर किया कि कानून में ऐसा कुछ नहीं कि मखसूस नशस्त पर मुंतखब रुकन वफाकी वज़ीर नहीं बन सकता। रुकन असम्बली को वफाकी वज़ीर या वज़ीर मुमलिकत तैनात करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इस्लामाबाद में PTI को जलसे और धरने की इजाज़त देने से मुतालिक मुतफर्रिक दरखास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से डॉक्टर बाबर आवान और वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तोगल अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरखास्त गुजार की जानिब से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदउनवानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट बेनामीदारों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में कानून साजों को हिदायत जारी कर चुकी है। अदालत ने ख्वाजा हारिस से कहा कि वो एक मरतबा दलाइल मुकम्मल कर लें तो उनसे मुख्तलिफ आइनी और कानूनी निकात पर सवालात किए जाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वर्ल्ड बैंक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के तरक्याती अज़ाइम और गुर्बत को कम करने की कोशिशों में रखना डाल रही हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक सैलाब से 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पायदार तरक्की और तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए मौसमियाती और माहौलियाती लिहाज से मौजूद बुनियादी ढांचे की तश्कील के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मुआवनत फ़राहम करना होगी।
کراچی میں جاری بین الاقوامی دفاعی نمائش میں مختلف سیمینارز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے موضوع پر ہونے والے سیمینار کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری دفاعی پیداوار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز نے کہا کہ مصنوعی ذہانت زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح دفاع کی بھی اہم ضرورت ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے مختلف معاملات میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ٹیکنالوجی انسانی استعداد کار کا متبادل نہیں ہو سکتی، تاہم جنگی صورتحال اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی کے سائبر سیکیورٹی کے ماہر لارس جی اے ہائلز نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جبکہ سائبر سیکیورٹی دفاع اور حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ وارفیئر میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ سیمینار سے انڈونیشیا کے کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے ماہر ڈاکٹر سگٹ جارٹ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5G ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ اور ہائبرڈ ٹیکنالوجی نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، جبکہ اس ضمن میں مستقبل میں جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی میں مزید جدت اختیار کرنا ہوگی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آئیڈیاز نمائش 2022 میں جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف ممالک کے مندوبین کو ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مہمان خصوصی سیکرٹری دفاعی پیداوار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز کو سوینئر پیش کیا گیا، جبکہ دیگر مقررین کو بھی یادگاری شیلڈز دی گئیں۔ آئیڈیاز کے پہلے سیمینار میں سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بات کی گئی، جس پر ماہرین نے اس ضمن میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ایکسپو سینٹر، کراچی۔ ناظرین، دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 میں دوست ملک ترکیہ اور چین بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ ترکیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ سے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ بات دفاعی تعاون کی ہو تو دونوں ملک ایک جان دو قالب کی طرح پیش آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ آئیڈیاز کے 11ویں ایڈیشن میں بھرپور انداز میں فضائی، بحری اور بری اسلحہ سازی کے مختلف ساز و سامان کے ساتھ نمائش کا حصہ ہے۔ Very thank you very much to the Pakistani governments and the Pakistani brothers and the Pakistani armed forces and everybody. They are hosting us very well. We feel at our home very good. This year our Turkish company is attending more size, and as you have seen here, we have already two Turkish malls. پڑوسی ملک چین بھی اس دفاعی پلیٹ فارم کو نہایت اہمیت دیتے ہوئے دفاعی تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے، جبکہ کینیڈا بھی نمائش میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ So far it's going very well. It's my first time in Pakistan, so it's a nice country. I like Pakistan, although I've only been here for 2 days, but it's very nice. Exhibition has been, so far it's been very good. There's been lots of military here, which is good. آج کے دور میں آئیڈیاز جیسے ایونٹ کا انعقاد جو ہے وہ میں اس کو ایک میریکل سے کم نہیں کہوں گا۔ جن معاشی حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو آئیڈیاز کا انعقاد میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوش آئند قدم ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خطے کے لیے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو نے نمائش میں پاکستان ایئر فورس پویلین کا دورہ کیا اور نمائش کے مختلف حصے دیکھے۔ پاک آرمی اور پاک بحریہ کی جانب سے بھی نمائش میں خود انحصاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف دفاعی ساز و سامان کی بھرپور تشہیر کی گئی ہے۔ آئیڈیاز کے آغاز کے ساتھ ہی پہلے دن بڑی تعداد میں وزٹرز نے دفاعی نمائش کا دورہ کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنسز، سیمینار اور مختلف بزنس ٹو بزنس وفود کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद नामवर कश्मीरी सहाफ़ियों ने मकबूजा इलाके के बारे में मनगढ़ंत खबरें चलाने से इनकार करते हुए कई अंग्रेजी अखबारात से इस्तीफा दे दिया है। KMS के मुताबिक रोजनामा राइजिंग कश्मीर के साथ वाबस्ता मुसाफी होने वाले सहाफ़ी जहांगीर सूफी, इश्तियाक जौ, शहरियार बुखारी और याकूब अली का कहना है कि उन्हें मोदी हुकूमत और भारतीय फौज झूठी और मनगढ़ंत खबरों के जरिए इलाके में हिंदुत्व एजेंडे और BJP RSS के मुश्तरका बयानिए को आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके में अपने फिरका वाराना एजेंडे को तर्क करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हल की राह हमवार करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज़ादी के लिए दी गई 5 लाख से ज़ायद लोगों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिख रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन सिमरनजीत सिंह मान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भारत के टूट अंक के राग की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बदस्तूर एक मुतनाज़ इलाका है जिसके मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा रायशुमारी के जरिए होना है। उन्होंने दफ़ा 370 को मनसूख करने और मोदी हुकूमत के इस दावे को कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यूरोपीय यूनियन वीक की तकरीबात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में एक तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की गई जिसमें पेश की जाने वाली तस्वीर बेल्जियम के नामवर फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर सदरक गुरबिहाय ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान ली थी। तस्वीर में कश्मीर की सकाफत और कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम को उजागर किया गया। इस मौके पर कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा कि इस हफ्ते को मनाने का मकसद मसला कश्मीर को यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। उधर भारत में मुसलमान होना किसी जुर्म से कम नहीं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा की जानिब से धमकी दिए जाने के बाद कर्नाटक का एक बस स्टॉप गिरा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि इसका डिजाइन मस्जिद के गुंबद से मुबासलत रखता है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। भारत में जमहूरियत नहीं, जुल्म बर्बरियत और दहशत है। पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई, गुजरात फसादात में मुसलमानों का खून बहाया गया और फिर मुसलमान खवातीन पर हिजाब करने की पाबंदी लगा दी गई। बात यहाँ तक भी रुकी नहीं। मुसलमानों की दुश्मनी में ये भारतीय सियासतदान बावले हुए फिरते हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। यह है भारतीय रियासत कर्नाटक का एक बस स्टॉप। इसके डिजाइन पर निगाह डालिए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला लोकसभा का मेंबर प्रताप सिम्हा अब ये बस स्टॉप गिराना चाहता है क्योंकि इसके 3 गुम्बद मस्जिद से मुमासलत रखते हैं। इंसानी हकूक के कारकुन इल्ताफ अहमद वानी कहते हैं, भारत मुसलमानों की तमाम निशानियां मिटाना चाहता है। बाबरी मस्जिद से लेकर बहुत सारे दूसरे अहम मकामात पर हिंदुओं का कब्जा और उस पर रियासती हिमायत, हिंदुस्तानी सरकार और उसकी लीडर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। अगरचे उन्हें चाहिए था कि वो उन लोगों को जो इंतहा पसंदाना सोच रखते हैं, जो हेट स्पीच और हेट क्राइम में शामिल है, उनको सजा देते, लेकिन इसके बरक्स उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। चाहिए तो यह था कि भारत में इस बयान की नफी की जाती, लेकिन मक्कार भारतीय मीडिया इस इंतहा पसंदाना सोच को मजीद परवान चढ़ा रहा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसे मुतनाज़ा बनाने वाले बैरूनी साजिश पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। शोरकोट में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में शुरका की जानिब से पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के बगैर रियासत पाकिस्तान की बका नामुमकिन है। मिट्टी में हरियाणा थरपारकर की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई प्रेस क्लब मिट्टी पहुंची। रैली में ताजरों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे लगाए।
पाकिस्तान में बहरी मामलात के लिए कायम कौमी इदारे ने इकनॉमिक अफेयर्स मैगजीन के ताउन से खुसूसी शुमारे की लॉन्चिंग के साथ आगाही सेमिनार्स का इनेकाद किया। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। मैरी टाइम इंडस्ट्री यानी समंदर के रास्ते होने वाली तिजारत और उससे मुतल्लिका दीगर अमूर की सनत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली इस इंडस्ट्री की अहमियत को उजागर करने के साथ उससे माहौल दोस्त बनाना भी जरूरी। इसी सोच को उजागर करने के लिए मैरी टाइम के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान बहरी अमूर के कौमी इदारे के इश्तराक से इकनॉमिक अफेयर्स मैगजीन के खसूसी एडिशन की रोनुमाई भी की गई। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और 91% तिजारत भी समंदर के रास्ते होती है, लेकिन मैरी टाइम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना अल्लाह ताला ने ट्रमेंडस पोटेंशियल इसमें दिया है और हम अपने नेशनल रिसोर्सेज में कितना इजाफा कर सकते हैं कि अगर हम इन मैरी टाइम रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करें। तो लॉन्ग टर्म इनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेकिन कमिटमेंट के साथ अगर हम चलेंगे तो यकीनन इसमें फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया कह रही है कि फ्यूचर जो है वो समंदरों का है और ख़ास तौर पे हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर और मैरीटाइम इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें पाकिस्तान की जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा एक रोल बनता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में लेकर आएँ जो कि हमारे सी एनवायरनमेंट को, मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करे और एक सस्टेनेबल तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकें। सेमिनार में बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के ज़ेरे एहतमाम आइंदा साल कराची में एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन भी शिरकत करेंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत का जायजा लेने के लिए कायम पार्लिमानी कमीशन ने कोयटा में लापता अफराद के कैंप का दौरा किया। सरदार अख्तर जान मेंगल की सरबराही में कमीशन ने लोगों की शिकायत सुनी। मामा कदीर बलोच और मुतासरा खानदानों ने कमीशन के सामने अपने मामलात पेश किए। पंजाब हुकूमत काश्तकारों की माशी नस्लकुशी करने के दर पे है। नवंबर का महीना निस्फ गुजर जाने के बावजूद गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका जिससे काश्तकारों में बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। सूबा पंजाब में गन्ने की क्रशिंग का सीजन ताहाल शुरू नहीं हो सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे में गन्ने की फसल का रेट तय करने और क्रशिंग सीजन शुरू करने की तारीख का ऐलान ताखीर का शिकार है जिससे काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि पूरा साल मेहनत करके फसल तैयार करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताखीर की वजह से गंदम की फसल की काश्त का वक्त भी गुजरता जा रहा है जिससे खास तौर पर छोटा किसान तशवीश का शिकार है। पंजाब गवर्नमेंट ने गन्ने का ना कीमत का ऐलान किया है और ना ही क्रशिंग सीजन का पता है हमें कब शुरू होगा। ये जिम्मेदारों का मुआशी कत्ल करने के दरपे पे है। छोटे छोटे जिम्मेदार हैं इस इलाके के। हमने गन्ने की फसल काटनी है और बाद में गंदम की ब्याई करनी है। अगर गन्ने की ब्याई टाइम पर नहीं होगी तो इस तरह तो फिर वो खुराक का बहरान भी पैदा हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने जो किसानों के ऊपर एक जालमाना रवैया जो अपनाया है, गन्ने की जो सेल है वो मिलें बंद की हुई हैं, मिलें चल नहीं रही, ना ही रेट को तय किया जा रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द क्रशिंग सीजन का ऐलान किया जाए और गन्ने का रेट 350 रुपए रखा जाए ताकि गन्ने की फसल पर होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। हमने गन्ना उठा के उसके बाद गंदम काश्त करनी है। गंदम सिंध में बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से काश्त नहीं हो रही। अगर पंजाब में भी यही पोजीशन रही तो किधर से ये करेंगे अफोर्ड। गन्ने की जिहड़ी फसल है वो तो साडी हुण पई है ते कणक जिहड़ी वो खराब होण डई है, वो बीजण नहीं देण दा ते मेहरबानी है पंजाब गवर्नमेंट अगे ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਸੱਟਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। काश्तकारों का कहना है कि पंजाब हुकूमत काश्तकार के मसाइल नजरअंदाज करके मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। वक्त पर पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के साथ गन्ने की कीमत का तयन करना हुकूमती जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत गरीब किसान के लिए इकदाम करने में नाकाम दिखाई देती है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर PIA की बराह रास्त इफ्तिताही परवाज इस्तांबुल पहुंच गई है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्किश एयरलाइन के हुकाम ने प्रोटोकॉल के बरखिलाफ जहाज के अंदर आकर नशस्त से CEO PIA का इस्तकबाल किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर PIA की टीम और मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए एक पुरवकार तकरीब के दौरान केक काटा गया। इस मौके पर PIA और तुर्किश एयरलाइन के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों को हतमी शक्ल दी गई।
इससे कबल लाहौर में इस्तांबुल के लिए बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की गहरे तारीखी और मुश्तरका सकाफ़ती रिश्ते से मुंसलिक हैं। PIA अपनी सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। हवाई अड्डे पर इफ्तिताही परवाज़ के मौके पर केक काटा गया और मुसाफिरों में फूल, तहाइफ और तुर्किश मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान की असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। इमरान खान झूठे बयानिए पर सियासत कर रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौम जानती है कि फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना केस में क्यों गुमराह किया गया। आने वाले दिनों में भी इमरान खान बेनकाब होंगे, तो ये चीज़ें जो है ना, ये ढकी छुपी नहीं रहेंगी। इमरान खान को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि जब चाहें अपना जो है वो झूठा बयानिया बनाकर कहें कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जब चाहें कहें कि जी नहीं अब मैं इस बयानी से पीछे हटता हूँ। इस तरह तो स्कूल के बच्चे नहीं करते जिस तरह इमरान खान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। ये मुल्क जो है इन तमाशों को मुतामिल नहीं हो सकता। आज मईशत जो है, जो इनका किया धरा है, जो इन्होंने फैसले किए, वो आज इस आने वाली हुकूमत को जो है कठिन फैसले करने पड़े हैं। लोगों पर बोझ है महंगाई का, लेकिन अगर ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, मईशत जो है वो बहाल नहीं होगी, तो कौन सी सियासत होगी इस मुल्क में। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी ने वजारत सेहत के तमाम मातहत इदारों के 30 दिनों में रूल्स बनाने की हिदायत की है। कन्वीनर वजीहा कमर की सदारत में होने वाले इजलास में वजारत सेहत के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। कमेटी ने वजारत सेहत की ग्रांट्स के हवाले से CDSEs के इजलास न होने पर बरहमी का इजहार किया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को भिजवाए गए केसेस पर पेशरफ जानने के लिए चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम की सदारत में हुआ। कमेटी ने कमेटी रूम में नए मुआसाती निज़ाम की तनसीब में खराबी की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास ने वक्त पर DAC न होने पर बरहमी का इजहार किया और हिदायत की कि आइंदा बर वक्त DAC न होने की सूरत में मुतल्लिका सेक्रेटरी की तनख्वाह से पैसे लिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आइन के तहत पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। आइन तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मसावी हुकूक फराहम करता है। इस्लामाबाद में अक़लियती बरादरी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत की शाना बशाना पार्लियामेंट अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करती है। उन्होंने मुल्क की मजबूती तरक्की बिलख़ुसूस तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पे मसीही बरादरी की काबिल सताइश खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है। लाहौर में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने समाजी और इक़्तिसादी रोड मैप पाकिस्तान आउटलुक 2035 शुरू करने का उसूली फैसला किया है। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों को तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर मिसाक मईशत के उसूलों पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैम -4 और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और फैसला कुन T20 मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरे मैच को पिंक रिबन से मंसूब किया गया है। मैच के दौरान खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल्स और कमेंटेटर्स पिंक रिबन पहनेंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाने वाली सीरीज के लिए तमाशाइयों का दाखिला फ्री है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 T20 सीरीज का कल से मुल्तान स्टेडियम में आगाज होगा।
T20 सीरीज ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई मुल्तान स्टेडियम में हुई। तकरीब में दोनों कप्तानों साद बेग और अहरार अमीन ने शिरकत की। सीरीज से कबल दोनों टीमों ने मुल्तान में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इससे पहले वनडे सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम रही। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेला सजने को तैयार है। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्टेडियम्स में जदीद कूलिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद यूनस से। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करने जा रहा है फुटबॉल के आलमी कप की मेजबानी। कतर अरब दुनिया का पहला और एशिया का दूसरा मुल्क है जो वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्टेडियम्स में 40 से 80 हजार तमाशाइयों की गुंजाइश है। ये मैदान जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। अरब के तपते सहराओं में हिद्दत को कंट्रोल करने का भी मुनफरिद निजाम बनाया गया है। डॉक्टर कूल के उर्फियत रखने वाले मशहूर इंजीनियर सऊद गनी ने कूलिंग निजाम तैयार कर लिया है। ये पूरा कूलिंग सिस्टम कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मरकज से 80 किलोमीटर के फासले पर बनाए गए सोलर प्लांट से चलता है। फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें शामिल हैं। इवेंट के 64 मैचेस 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में शेड्यूल हैं। फ्रांस की टीम टाइटल का दिफा करेगी। मोहम्मद फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 51 ममालिक का सफर तय करके कतर पहुंच गई है। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई दोहा में की गई। साबिक फ्रांसीसी फुटबॉलर मार्सेल ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुनासबत से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल बूट बना दिया गया है। दोहा के कटारा कल्चर विलेज में बूट की नुमाइश की गई। इंतजामिया के मुताबिक इन्हें यह बूट दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल बूट होने की कवी उम्मीद है। बूट की लंबाई 17 फुट जबकि ऊंचाई 7 फुट है। शायकीन की बड़ी तादाद ने मेजबान कतर की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। जनूबी पंजाब के स्कूल ओलंपिक्स मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब मुल्तान में हुई। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी बहावलपुर ने फतह की रिवायत बरकरार रखी। ख्वाजा मोहम्मद कलीम की यह रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के तमाम अजला के स्कूलों के माबैन ओलंपिक्स मुकाबले 5 दिन तक जारी रहे। स्कूल ओलंपिक्स के आखिरी दिन वॉलीबॉल और 400 मीटर रेस के फाइनल मुकाबले हुए। जिला बहावलपुर ने मजमूई तौर पर 502 पॉइंट्स के साथ पहली, बहावल नगर ने 469 पॉइंट्स के साथ दूसरी, जबकि मुल्तान ने 311 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। हमने टेबल टेनिस में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुल्तान के कि इन्होंने ये इवेंट किया। इनको ऐसे इवेंट करवाते रहने चाहिए ताकि हम गर्ल्स को आगे मौका मिले कि हम अपनी कौम को दिखाएं कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हम यहाँ पर बलूचिस्तान से आए अपनी प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक ऐसे टूर्नामेंट का इनेकात हुआ था जिसमें हमारे नौजवान नस्ल के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते पैदा करने की कोशिश की गई कि वो अपने टैलेंट को निखार सके। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी आगे तक पहुँचाया और अब हम साउंड पंजाब के विनर। इख्तितामी तकरीब में बच्चों और बच्चियों ने सूफियाना कलाम और मिल्ली नगमे भी पेश किए। तकरीब में पहले 3 नंबर्स पर आने वाले अजला और बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को मेडल पेश किए गए। स्कूल की सतह पर खेलों के मुकाबले बच्चों में सेहतमंद मुसाबिकत का रुझान और मुस्बत सोच को फरोग देने का बायस बन सकते हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। K2 की सरजमीन शिगर में बल्तिस्तान की कदीम कश्ती रानी जख रैली का इनेकाद हुआ। मल्लाहों ने दरियाए सिंध में 30 किलोमीटर से जायद का सफर तय किया। तफसील गुलजार शिगरी से। ज़ख्बानी बल्तिस्तान की कदीम सकाफत है और पुराने ज़माने में बल्तिस्तान के बासी ज़राए आमदोरफ्त के लिए ज़ख्बानी का इस्तेमाल करते थे। पोर और वज़ीरपुर के ज़ेर एहतमाम इस ज़ख रैली में 60 से ज़ायद मल्लाहों ने शिरकत की। तो रास्ते में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आया और कहीं जगहों पे ज़ख फंस भी गए। तो इस ठहरते हुए सर्दी में
बड़े मुश्किल के साथ यहाँ पे पहुँचने में हम कामयाब हो गए। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ज़िला इंतज़ामिया शिगर भी ज़ख रैली को मज़ीद प्रमोट करने के लिए इक़दामात कर रही है। तो बड़ा एक अच्छा रिस्पांस मिला है आवाम की तरफ से भी, और यहाँ के जो सारे सिटीजन्स हैं, यहाँ के शहरी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लिया है। ज़ख्बानी जहाँ सकाफत को ज़िंदा रखी हुई है, वहीं पर इससे सरमाही सियाहत को भी फ़रोग़ मिल रही है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक खान। नाज़रीन, इंडोनेशिया के सियाहती शहर बाली में दुनिया के 20 बड़े सनती मुल्कों का 2 रोज़ा सरबराह इजलास जारी है। इजलास के पहले रोज़ रुकन मुल्कों की जानिब से रूस यूक्रेन जंग और इसके आलमी असरात पर अफसोस का इजहार किया गया। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने यूक्रेन में जंग के खात्मे की अपील करते हुए कहा कि हम पर इंसानियत और पूरी दुनिया के हवाले से जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर जंग खत्म न हुई तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमें इस जंग को दूसरी सर जंग में तब्दील होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि हम मिलकर मजबूत शक्ल में बहाली की तरफ गामजन हों। इफ्तिताही इजलास के बाद G20 सरबराहान का खुराक और तवानाई के मसले पर बंद कमरा इजलास हुआ। आलमी इक्तिसादी बहाली, निज़ाम सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी सरबराह इजलास के एजेंडे में शामिल हैं। रूस ने जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन की शराइत को गैर हकीकी करार दे दिया है। बाली में G20 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि तमाम मसाइल की वजह यूक्रेन का रवैया है। यूक्रेन से अनाज की बरामद के बारे में सवाल पर रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकावटें दूर करने के लिए अमरीका और यूरोपीय यूनियन के तहरीरी वादों के बारे में आगाह किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। मुतालबा किया है कि यूक्रेन को जंगी हर्जाना अदा करे। 193 रुकनी जनरल कमेटी में इस मामले पर राय शुमारी हुई। 94 ममालिक ने हर्जाना अदा करने जबकि 14 ने मुखालफत में वोट दिया। 74 मुल्कों ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जनरल कमेटी ने यह भी मुतालबा किया कि रूस को यूक्रेन में बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कमेटी के फैसले अगरचे कानूनी पाबंदी आयद नहीं करते लेकिन सियासी तौर पर अहमियत रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान इंडोनेशिया के जजीरे बाली में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया और अमरीका के सदूर ने नेटो की तोसी, यूक्रेन से अनाज की बरामद के मुआहदे में तोसी और तुर्किया को F-16 तैयारों की फराहमी के मामलात पर भी गुफ्तगू की। फ्रांस और चीन की क़यादत ने आलमी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। दो चीज़ें आपसे शेयर करनी है। एक चूँकि आज 15 नवंबर है और आज रात यानी 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान ड्यू होता है, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से कि किसी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, किसी भी आइटम की कीमत नहीं बढ़ेगी। तमाम जो हैं आइटम्स, पेट्रोल, डीज़ल, लाइट डीज़ल ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी और ये 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वही कीमतें होंगी जो आज जो है नाफिजुल अमल हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये शेयर करनी थी कि 9 नवंबर पिछले बुध वाले दिन हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और की यानी सरबराही में एक फ़ैसला किया और गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत से कि हुकूमत पाकिस्तान के यानी फ़ैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सूद के हवाले से जो वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें दाखिल कर चुके हैं, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनको वापस लेंगे। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे कहा था कि चंद दिन में ये इस पे अमल दरामद हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी
और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी, जो कि हुकूमत के अवाम के दोनों इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, बैंक्स हैं, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिख कर ये दायर कर दी है एप्लीकेशन कि हम अपनी अपीलों को वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं और वापस लेने के लिए इजाज़त तलब कर ली, और ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने के फैसले का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ की जाने वाली अपीलें वापस लेने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।